السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جنات یا شیاطین بھی انسان کے ساتھ یعنی خواتین کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے یا نکاح کر سکتا ہے یا صحبت کر سکتا ہے؟ یہ سننے میں تو ایک عجیب سا سوال ہے، لیکن حقیقتاً ایسا ہوا ہے کہ ہندوستان کے ایک شہر میں، ہندوستان کے ایک دور مضافاتی ایک علاقے میں ایک ہندوستانی لڑکی کے ساتھ ایک پراسرار بندہ، جو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کوئی جنات تھا، وہ انسان نہیں تھا، اس نے مباشرت کی، اس نے نکاح کیا اور پھر حمل ٹھہر گیا۔ یہ کہانی کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ حقیقی کہانی ہے اور ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس حقیقت کو جاننے کے لیے پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں ویڈیو۔ ایک اکیلی لڑکی نے ایک 10 سال کے لڑکے کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ اس کا نام علی رکھا۔ اسے باتیں کرتی تھی، اسے اپنا دوست بنایا تھا، لیکن ایک دن اس لڑکے نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ کچھ مہینوں بعد لڑکی کے پیٹ میں ایک بچہ پلنے لگا۔ گاؤں والے ہنسے، تانا مارا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس نے کبھی کسی انسان کا سپرش تک نہیں کیا تھا۔ کیا یہ سچ مچ اسی لڑکے کا بچہ تھا؟ اس رہسیہ کو جاننے کے لیے پوری کہانی سنیے۔ یہ کہانی چندر پور کے ایک سنسان لیکن رہسیہمئی گاؤں کی ہے، جہاں ہر پرچھائی ایک راز چھپائی رکھتی تھی۔ شہر کی چکا چوند یا زندگی کی بھاگ دوڑ یہاں نہیں تھی۔ پہاڑوں کی گود میں بسا یہ گاؤں ہریالی سے ڈھکا پراکرتک شانتی میں ڈوبا تھا۔ گاؤں کے ایک کونے میں ایک جھوپڑی تھی جہاں نور رہتی تھی، ایک سیدھی سادھی اکیلی اور خاموش لڑکی۔ اس کی دنیا اس کا انگور کا باغ تھا جو اسے اپنے ماتا پتا کی موت کے بعد وراثت میں ملا تھا۔ وہ اکیلے پن کی عادی ہو چکی تھی، نہ کوئی سہیلی تھی، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی من کی خوشی۔ ہر صبح وہ سورج نکلنے سے پہلے باغ میں جاتی، اپنے کومل ہاتھوں سے انگور توڑتی، پھر بازار میں بیچ آتی۔ نور کے بارے میں گاؤں میں ایک ہی بات مشہور تھی، وہ انگوروں والی لڑکی ہے، ہمیشہ اکیلی رہتی ہے، لیکن اس کے انگور بہت میٹھے ہیں۔ ایک دن نور جب باغ میں انگور توڑ رہی تھی، ہلکی دھوپ پیڑوں کی ڈالیوں کو چھو کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ پنچھی چہچہا رہے تھے اور نور اپنے خیالوں میں ڈوبی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکان اور خاموشی کی پرچھائی تھی، جیسے کوئی گہری بات اس کے من میں دبی ہو۔ اچانک اس کی نظر ایک 10 سال کے لڑکے پر پڑی۔ وہ عام لڑکوں جیسا نہیں تھا، نہ شیطان نہ شور شرابہ کرنے والا۔ خاموشی سے بیٹھا نور کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب معصومیت تھی۔ نور چونک اٹھی، پہلے ڈر گئی، پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نور نے جلدی سے ایک سوکھی لکڑی اٹھائی اور زور سے بولی، چلے جاؤ، میرا باغ خراب مت کرو۔ لیکن لڑکا وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک اداسی چھپی تھی۔ نور اسے دیکھ کر تھوڑی نرم پڑ گئی۔ پاس جانے کے ساتھ ہی اس کی ہمت کم ہونے لگی۔ لڑکا کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، بس آنکھیں جھکا لی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نور دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے، لیکن نقصان مت کرنا۔ اس دن لڑکا بھاگا نہیں، وہ جگہ سے اٹھ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا اور نور اپنی ٹوکری بھرنے لگی۔ اگلے دن جب وہ باغ میں لوٹی تو وہ لڑکا اسی جگہ بیٹھا تھا۔ اس بار وہ حیران ہوئی مگر ڈری نہیں۔ تم پھر آ گئے؟ لڑکے نے سر ہلایا۔ نور کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان پھیل گئی۔ اس نے ہاتھوں میں کچھ انگور لیے اور دھیرے سے اس کے پاس رکھ دیے۔ لڑکا خاموشی سے انگور لے کر کھانے لگا۔ دن گزرتے گئے۔ روز نور باغ میں آتی، کام کرتی اور لڑکا وہاں رہتا۔ وہ شیطانی نہیں کرتا بلکہ مدد کرتا۔ پیڑ سے انگور توڑ کر نیچے گراتا، کبھی کبھی نور کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتا، جیسے کہہ رہا ہو، آج کا انعام کہاں ہے؟ نور لڑکے کی عادی ہو گئی۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگی جیسے وہ سمجھتا ہو۔ کاش میری ماں ہوتی، اس کی طرح تم بھی شانت سوبھاؤ کے ہو۔ لڑکا سب سنتا، آنکھوں سے جواب دیتا، کبھی سر ہلاتا، کبھی آہ بھرتا۔ نور اس کے ساتھ سکون محسوس کرنے لگی۔ کچھ ہفتوں بعد ایک دن بارش شروع ہو گئی۔ نور دوڑ کر اپنی جھوپڑی کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو لڑکا باغ میں بھیگ رہا تھا۔ اسی پل اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ دوڑ کر واپس گئی اور بولی، میرے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ لڑکا گیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جیسے اس کے وجود میں کوئی راز چھپا ہو۔ نور نے
उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो मेरे साथ घर चलो, तुम अब अकेले नहीं रहोगे। लड़के ने खामोशी से उसकी बात मान ली। अब नूर की झोपड़ी में अकेलापन नहीं था। लड़का उसके साथ रहता, कोने में बैठा रहता, रात को नूर की कहानियां सुनता। वह उसे अली कहकर बुलाती, अली खाने आ जाओ, खाना तैयार है, अली चलो बाजार अंगूर बेचने। गांव वाले हैरान होते, कोई हंसता, कोई फुसफुसाता, यह लड़की पागल हो गई है, एक लड़के को घर ले आई है। लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता नूर पर। वह अपनी दुनिया में खुश थी, जहां अली, बाग और दिल का सुकून था। एक रात नूर अपने बिस्तर पर लेटी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अंदर मिट्टी का दिया चल रहा था। अली कोने में बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। नूर बड़बड़ाई, तुम मेरे साथ रहोगे, है ना, हमेशा? अली ने सिर हिलाया। नूर सो गई, लेकिन उस रात कुछ बदलने वाला था जो वक्त के पहिए को घुमा देगा। चंद्रपुर में शरद रथों की ठंडक फैल चुकी थी। सूरज की रोशनी मध्यम हो गई थी। पेड़ों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे थे। अंगूरों का मौसम भी खत्म हो रहा था। नूर का बदन कई दिनों से टूटा टूटा लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान, होठों पर मुस्कान कम हो गई थी। पहले उसने सोचा यह आम थकान है, लेकिन बुखार, सर्दी और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर डाल दिया। अली हमेशा उसके पास रहता, कभी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता, कभी पानी लाता, कभी बाजार से फल चुरा कर लाता। नूर की सांसें धीमी हो गई थीं, लेकिन दिल में सुकून था। कोई उसके पास था जो उसे कभी छोड़कर नहीं गया था। एक शाम आसमान बादलों से ढका था। नूर कमजोर आंखों से अली की तरफ देखकर थकी हुई आवाज में बोली, अली, अगर तुम ना होते तो मैं मर जाती। अली ने उसका हाथ पकड़ा, जैसे कुछ कहना चाहता हो या शायद कुछ छुपाना चाहता हो। कुछ दिनों बाद नूर की तबीयत बेहतर हुई। वह फिर से घर साफ करने, बाग में जाने और अली से लंबी बातें करने लगी। एक रात पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। नूर चटाई बिछाकर आसमान की तरफ देखते हुए अली को गले लगाकर बोली, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है अली, कभी जा मत, वादा करो। अली ने उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही थीं। नूर जल्दी से सो गई और उस रात उसकी नींद गहरी थी। रात के आखिरी पहर में बाहर खामोशी थी। दिए की लौ मध्यम हो गई थी। नूर गहरी नींद में थी, शायद सपने में या ऐसी हकीकत में जिसके बारे में कोई इल्म नहीं था। अली उसके पास आया। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। उसका बर्ताव अलग सा हो गया है। उसने नूर के माथे पर हाथ रखा, फिर कुछ ऐसा किया जिसका नूर को कोई अंदेशा नहीं था। सुबह नूर की आंखें खुली। बदन थका हुआ लग रहा था, जैसे उसने लंबा सफर तय किया हो। उसने कुछ महसूस किया, लेकिन उसे अहमियत नहीं दी। उसका दिल फिर भी शांत था। अली उसके पास था। वह अकेली नहीं थी। महीने गुजर गए। वक्त खामोशी से चल रहा था। नूर के शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। सुबह उल्टी, कमजोरी, सीने में बेचैनी। पहले उसने सोचा शायद फिर से बीमार हो गई, लेकिन एक दिन वह बेहोश हो गई। गांव के एक हकीम को बुलाया गया। उन्होंने नब्ज जांची और बोले, तुम मां बनने वाली हो। 4 महीने गुजर चुके हैं। नूर के कानों में जैसे बिजली गिरी। क्या कहा? हकीम नरम आवाज में बोले, हाँ बेटी, तुम हामिला हो। हक्की बक्की नूर बोली, लेकिन मैं तो कभी किसी के पास नहीं गई, किसी को छुआ भी नहीं। हकीम खामोशी से देखकर बोले, कभी कभी किस्मत ऐसा कुछ लिख देती है जो अकत्ल नहीं समझती। नूर घंटों आईने में खुद को देखती रही। उसके हाथ बार बार पेट पर जा रहे थे। आंखों में आंसू, दिल में झकम और मन में बस एक ही सवाल, ये बच्चा किसका है? उसने सब पर शक किया। फिर नजर अली पर पड़ी। वह उसके सामने बैठा था, खामोश मासूम आंखों से देख रहा था। लेकिन पहली बार नूर की आंखों में शक जागा। क्या तुम उसकी आंखों से आंसू झरे? अली ने सिर झुकाया। नूर चीख उठी, तुमने मेरी इज्जत खराब की है। तुम मेरे अकेले दोस्त थे। अली खामोशी से खड़ा रहा। नूर चीखी, निकल जाओ मेरे घर से। अभी अली दरवाजे के पास गया। एक बार पीछे देखा, फिर निकल गया। वह दरवाजे के बाहर बैठा रोता रहा। हर रात, हर दिन
लेकिन नूर ने दरवाजा नहीं खोला। नूर बाहर जाती, अंगूर तोड़ती, बाजार में बेचती, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुकी थी। गांव वालों की नजरें बदल गई थीं। कोई सवाल करता, कोई हंसता, कोई खामोशी से तमाशा देखता। अली अब बाग में नहीं घूमता था, वह नूर के दरवाजे की परछाई में बैठा रहता। एक दिन नूर दरवाजे के पास जाकर बोली, क्या तुमने मेरे साथ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था? अली ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद करके सिर झुका लिया। यही नूर के लिए काफी था। वह चीख उठी, निकल जाओ, तुमने मुझे तबाह कर दिया। अली पीछे हटा, आंगन में बैठा रहा। नूर ने उस पर पानी उछाला, लकड़ी से मारा, यहां तक कि उसे घर से निकाल दिया। लेकिन अगले दिन अली फिर वापस आ गया। हर दिन वह दरवाजे पर बैठता और नूर चीखती लेकिन दरवाजा नहीं खोलती। गांव की पंचायत में इस बारे में बात हुई। मौलवी, नंबरदार और बूढ़े बोले, यह लड़की गांव की इज्जत खराब कर रही है, बिना शादी के बच्चा इसे गांव से निकाल देना चाहिए। नूर को कहा गया, बच्चे के बाप का नाम नहीं बताओगी तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। नूर खामोश रही। कुछ औरतें उससे मिलने आती थीं, कोई दया की नजर से, कोई क्यूरोसिटी से। एक ने कहा, अगर तुम किसी मर्द का नाम बता देती तो कम से कम बच्चा जायज होता। नूर की आंखों में आंसू थे। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं बस इतना जानती हूं, जो हुआ वह मेरी समझ से बाहर है। अली खामोश तकलीफ से गुजर रहा था। वह खाता नहीं था, बस झोपड़ी के सामने बैठा रहता। उसके बाल झड़ रहे थे, आंखें धंस गई थीं। वह नूर की तरफ देखता, जैसे कहना चाहता हो, मुझे माफ कर दो। नूर की आंखों में भी दर्द था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह एक बच्चे से प्यार कर रही थी या यह धोखा था। वक्त चल रहा था, नूर की उम्मीदें कमजोर हो रही थीं। उसने सोचा, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं यह सब बांट पाती। काश यह एक सपना होता, आंखें खुलती और सब खत्म हो जाता। लेकिन हकीकत यह थी, उसके बदन में एक नई जिंदगी पल रही थी और बाहरी दुनिया उसे जिल्लत कह रही थी। नूर एक नई दुनिया में दाखिल हो चुकी थी, जहां चारों तरफ बस सवाल थे, जवाब नहीं, बस जख्म थे, मरहम नहीं, बस परछाई थी, रोशनी नहीं। अली हर दिन दरवाजे पर आता, लेकिन नूर का दिल बंद हो चुका था। एक शाम नूर झोपड़ी में बैठी थी, हाथ पेट पर, आंखों में रोज का सवाल। दरवाजे पर आवाज हुई। वह समझ गई अली आया है। वह उसे इग्नोर करती थी, लेकिन मन ही मन एक अनजाना डर पैदा हो गया था। क्या वह सचमुच बस एक लड़का था? उस रात गांव में एक अनजाने मौलवी आए। वह एक बूढ़े खामोश स्वभाव के इंसान थे, जिनके चेहरे पर इल्म की छाप थी। उन्होंने नूर की झोपड़ी के सामने आकर कहा, बेटी, मुझे कुछ कहना है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। नूर हैरान हुई। मौलवी बोले, तुम जिस लड़के के साथ रहती थी वह लड़का नहीं था, एक शापित जिन्न था। नूर की आंखें फैल गईं। यह क्या कह रहे हैं? वह तो एक बच्चा था। मौलवी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बेटी, बहुत साल पहले एक नौजवान ने एक बिल्ली को मार दिया था। सोचा था यह सिर्फ एक जानवर है, लेकिन वह एक जिन्न का बच्चा था। जिन्न ने उसे श्राप दिया था, उसे अदृश्य जिन्न बना दिया था, जिसे कोई देख या बात नहीं कर सकता था। लेकिन उसके एक अच्छे काम के लिए जिन्न ने उसे एक मौका दिया था। सिर्फ एक औरत उसे देख और बात कर पाएगी, और जिस दिन उस औरत से उसका सच्चा रिश्ता बनेगा, उस दिन वह फिर से इंसान बन जाएगा। वह औरत तुम हो। उसने जो अच्छा काम किया था वह यह था। बिल्ली को मारने के बाद उसने फौरन माफी मांगी थी और बिल्ली को मिट्टी दी थी। नूर के दिल में तूफान उठ गया। तो उस रात जो हुआ था वह श्राप तोड़ने का तरीका था। मौलवी ने हां में सिर हिलाया। वह अपराधी नहीं था, मजबूर था। शायद उसके दिल में मोहब्बत भी पैदा हो गई थी, इसलिए वह रोज वापस आता था। नूर ने दरवाजा खोला। जहां अली बैठता था वहां एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। सफेद कपड़े, सादा चेहरा, आंखों में विनम्रता। कांपती आवाज में उसने कहा, नूर, मैं वही हूं जिसे तुम अली कहती थी। तुमने मुझे अपने घर और दिल में जगह दी थी। मैं इंसान हूं। तुम्हारी सच्चाई और स्पर्श ने मुझे श्राप से आजाद किया है। मैं 10 साल का नहीं,
मैं 25 साल का हूं। मैंने एक बिल्ली को मारा था। जानता नहीं था कि वह जिन्न का बच्चा है। मैंने माफी मांगी थी, उसे मिट्टी दी थी और इसीलिए जिन्न ने मुझे यह मौका दिया था। मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। नूरसन रह गई। तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है और अब कह रहे हो प्यार करते हो। नौजवान जमीन पर घुटने टेक कर बोला, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन जानबूझकर नहीं। मैं बस जिंदा रहना चाहता था। तुम अकेली इंसान हो जिसने मुझे बच्चा समझकर भी मोहब्बत दी है। अब मैं इंसान हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगले दिन सुबह चंद्रपुर गांव हैरत में डूब गया। लोगों ने देखा नूर के दरवाजे पर एक अनजाना खूबसूरत नौजवान खड़ा है और नूर जिसे कल तक जिल्लत मिली थी आज सिर उठाकर उसके पास खड़ी है। मौलवी ने गांव वालों से कहा, तुमने जो सोचा वह गलत था। जिसे बच्चा समझा वह इंसान था। नूर को अपराधी समझा, लेकिन वह किसी की किस्मत की रोशनी बनी है। औरतें शर्मिंदा हुईं, मर्दों ने आंखें झुका ली। नूर ने सबको देखकर कहा, तुमने मुझ पर जुल्म किया, लेकिन मैं किसी से हिसाब नहीं चाहती, क्योंकि मेरी मोहब्बत लौट आई है। कुछ दिनों बाद नूर और नौजवान जिस जाहिद रखा गया था की शादी हुई। मौलवी ने निकाह पढ़ाया। जिन्होंने उसे ताना मारा था उन्होंने दुआ दी। शादी के बाद जाहिद ने नूर का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे रिहाई दी है, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। नूर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब दर्द नहीं, खुशी छुपी थी। कुछ महीनों बाद नूर ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। गांव में पहली बार एक कुंवारी मां के बच्चे को इतना सम्मान मिला। बच्चा मोहब्बत, त्याग और माफी का प्रतीक था। जाहिद हर दिन अंगूर के बाग में काम करता, नूर उसके साथ रहती। झोपड़ी अभी भी थी, लेकिन उसमें अब अकेलापन नहीं था, मोहब्बत थी। शाम के वक्त सूरज नारंगी रोशनी अंगूरों पर चमक रही थी। नूर और जाहिद अपने बच्चे के साथ बैठे थे। जाहिद धीरे से बोला, तुमने मुझे अकेलेपन और श्राप से आजाद किया है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी है। ये बात कहानी की हद तक तो बिल्कुल ठीक नज़र आती है, लेकिन हकीकतन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि एक लड़की को हमल ठहरने के लिए उसके रहम के अंदर जो एग्स पैदा करती है उसको फर्टिलाइज करने के लिए मादा मनिया की ज़रूरत होती है। इंसानी एक मर्द के जिस्म से निकला हुआ सीमेंस की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है, ताकि वो रहम के अंदर जाके उस एग्स को फर्टिलाइज कर सकें। लेकिन जिन्नात खुद एक रूह है, एक वो ठोस चीज़ को या माया चीज़ को वो किस तरह पैदा कर सकता है जो उसके रहम में जाए, उसको फर्टिलाइज कर सके। ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ कि क्या ऐसा मुमकिन है, या ये कहानी हकीकी है या ये कहानी फ़र्ज़ी है, ये क्या है? ये आप मुझे कमेंट्स की सूरत में आप बता दें, क्योंकि साइंसी तौर पर भी और अक़ली व नक़ली तौर पर भी ये मुमकिन नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।